ایک شخص صدقے کا مال نکالنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس غریب کی مدد کریں اس حساب سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس نے رات کا وقت متعین کر لیا کہ ہم رات میں آدھی رات کے بعد نکلیں گے اور جو بھی آدمی مجھے غریب آدمی ملے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ سنیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس آدمی نے نماز پڑھی اور رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد نکلتا ہے، یہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے، اس نے پوچھا، اے بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم تو نکلے ہیں۔ تو کہا کہ ہم بھی نکلے ہیں، تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں نہیں۔ اس نے کہا دیکھو بھائی تم کوئی مجبوری کی وجہ سے نکلے ہو تو بتاؤ، ہمارے پاس صدقے کا کچھ مال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کی مدد کریں۔ یہ جھٹ سے بول دیا، ارے بھائی مجھ سے زیادہ مجبور آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں رات کے اندھیرے میں اتنی رات میں کوئی آدمی اگر نکلے گا تو وہ مجبوری ہوگا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس آدمی کی مدد کر دی، لو میرے پاس صدقے کا مال ہے پکڑو، چپکے سے اس کی مدد کر دی، چلا آیا۔ نیت کیا تھی؟ کسی غریب کی مدد کروں، اور رات کے اندھیرے میں اس نے غریب کی مدد کی۔ گھر پہ آتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑا سا لیٹتا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، فجر پڑھتا ہے، صبح سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور صبح سورج نکلتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ چلیں ذرا، جیسے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے ٹہلتے ہوئے کبھی چائے کی ہوٹل پہ چلے گئے، چائے پی، وہ بھی نکل گئے ٹہلتے ہوئے۔ مارکیٹ میں پہنچتا ہے تو ایک چرچا سن رہا ہے، مارکیٹ میں شور ہو رہا ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے ان کی گفتگو سنی، بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو تمہیں نہیں معلوم؟ سب لوگ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس نے مدد کی، تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے کہا نہیں، ارے اللہ کا کوئی نیک بندہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں غریب سمجھ کر کسی آدمی کی مدد کی، لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ، وہ مدد کسی امیر کی کر بیٹھا، اس نے صدقے کا مال امیر کو دے دیا۔ اب حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کر کسی امیر کو صدقہ دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ امیر کا حق ہی نہیں ہے اس کو صدقہ دیا جائے، آپ کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب اس نے تو امیر کو دے دیا، لیکن دھوکے سے دیا تھا، جان بوجھ کر نہیں۔ دینا چاہتا تھا غریب کو، لیکن رات کی تاریکی میں اس نے دے دیا ایک امیر کو۔ افسوس کرنے لگا، گھر آیا، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے الہ العالمین مجھے عذاب نہ دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مدد غریب کی کرنا تھی لیکن میں نے امیر کی کر دی، لیکن تو میری نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، امیر کی مدد کرنے کی نہیں تھی، لیکن دھوکے سے میں امیر کو دے گیا۔ اے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے پاس صدقے کا تھوڑا مال اور بچا ہے، آج رات میں میں پھر نکلوں گا، آج رات میں میں پھر جاؤں گا، اے اللہ میں کسی غریب انسان کو ڈھونڈوں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ تیرے نبی کا فرمان ہے صدقہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس لیے میں رات ہی میں نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ میری مدد کرنا، میرے صدقے کو کسی غریب آدمی تک پہنچا دینا۔ اس نے دعا مانگی، دوسری رات میں آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلتا ہے، کسی غریب آدمی کی، کسی غریب انسان کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن افسوس بہت دیر تک تو اس کو کوئی آدمی نہیں دکھا، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی، اس نے سوچا چلو مل گیا۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں مطلب؟ کہا نہیں بتاؤ کچھ پریشانی ہے کیا؟ کہا پریشانی نہ ہوتی تو رات میں کوئی نکلتا؟ کہا کیا پریشانی ہے؟ ہے پریشانی، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟
इस सदका देने वाले ने सोचा कि चलो हमें क्या मतलब, ये नहीं बताना चाहता, अपनी परेशानी तो ना बताए। देखो भाई, मैं किसी परेशान आदमी की मदद करना चाहता हूं और मैं चुपके से अपना माल उसको देना चाहता हूं जो गरीब हो, जो परेशान हो। उसने कहा भाई मुझसे ज्यादा परेशान तो कोई मिलेगा ही नहीं तुम्हें। रात के अंधेरे में मेरे कई बच्चे हैं भूखे, इसलिए मैं निकला हूं कि उनके लिए कुछ खाना पानी मिल जाए। इस आदमी ने अपना सदका उस आदमी को दे दिया। ले चला आया, घर पे आता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, थोड़ा लेटता है, फजर की नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सूरज निकलता है, फिर बाजार में जाता है। मार्केट में फिर चर्चे हो रहे हैं। आज मार्केट में जो चर्चे होते हैं वो बड़े अजीब चर्चे। इसने पूछा क्या बातें हो रही हैं? उस लोगों ने बताया तुम बड़े भोले आदमी हो, सबको पता हो, तुम्हें पता नहीं है। कहा मुझे नहीं पता, मैं अभी आया हूं। कहा अल्लाह का नेक बंदा आज भी धोखा खा गया। वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखे से वो अपना सदके का माल किसी चोर के हाथ में दे दिया। जबकि हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, अगर आपको मालूम है कि कोई आदमी चोर है तो उसकी आप मदद नहीं कर सकते, उसको आप सदके का माल नहीं दे सकते। और इसने चोर को दे दिया। हदीस के हिसाब से गलत किया, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में किया। नियत गरीब की मदद करने की थी, लेकिन धोखे से वो चोर को दे गया। घर आया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते हुए कहता है इलाहुल आलमीन, आज भी मैं धोखा खा गया, लेकिन तू मेरे दिल की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे दिल की नीयत को अच्छी तरीके से जानता है। गरीब आदमी की मदद करने की नीयत थी, धोखे से आज मैं फिर चोर को दे गया हूं। ऐ अल्लाह, मेरी इस गलती को माफ करना। अब थोड़ा बहुत माल और बचा हुआ है, आखिरी चीज है, इसके बाद मेरे पास कोई सदके का माल नहीं है। ऐ अल्लाह, आज तीसरी रात में फिर मैं निकलूंगा और किसी गरीब की मदद करूंगा, तू मेरी मदद फरमाना। आज सदके का माल किसी गरीब तक पहुंचा देना। इलाहुल आलमीन, आज भी मैं हिम्मत नहीं हारा और आज मैं फिर किसी गरीब इंसान की मदद करूंगा। आधी रात गुजरने के बाद ये फिर गरीब आदमी की मदद करने के लिए निकलता है, तलाश करता है। आज इसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ती है। इसने सोचा चलो 2 मर्द तो गलत निकल गए, ये बेचारी औरत है, और औरत तो वाकई मजबूरी में निकल सकती है। इससे पूछा बहन कैसे निकली हो, क्या परेशानी है? उसने भी बयान करना शुरू कर दिया कि मेरे कई बच्चे हैं, भूखे हैं, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं निकली हुई हूं, शायद कहीं से खाना आना मिल जाए और मैं अपने बच्चों को खिला दूं। इसने सदके का माल उस औरत को दे दिया। चली गई वो औरत। यह आदमी घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, थोड़ा सोता है, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ता है, तिलावत करता है, सूरज निकलता है, बाहर जाता है। आज फिर बाजार में चर्चे सुन रहा है। लोगों ने पूछा मालूम? कहा नहीं, आज भी अल्लाह का कोई बंदा फिर धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? कहा वो किसी गरीब वो औरत को गरीब समझ बैठा। आज उसने जिसकी मदद की वो बदचलन औरत थी, जानिया औरत थी, वो जिस्म बेचने वाली औरत थी। उसका तो धंधा था रात में निकलने का, कस्टमर तलाश करने का, जिस्म बेचने का। वो तो जिस्म फरोश औरत थी, तवाए थी, वो पैसा लेती और जिस्म बेचती। अल्लाह का वो नेक बंदा आज एक जानी, एक बदचलन औरत को सदका दे बैठा। ये घर आया, नमाज पढ़ता है 2 रकात और दुआ करता है इलाहुल आलमीन, मैं आज भी धोखा खा गया, अब मेरे पास मजीद माल नहीं, जितना सदके का माल था वो मैंने दिया और तीनों रात तीनों जगह मैंने गलत जगह पर पहुंचा दिया। मेरी नीयत नहीं थी। इलाहुल आलमीन, अगर मुझे सदके का सवाब न मिले तो कम से कम गलत जगह माल पहुंचाने का गुनाह भी मत देना, इसलिए कि मैंने ऐ अल्लाह ये काम जानबूझकर नहीं किया। अमीर आदमी की मदद जानबूझकर नहीं की, चोर को सदका देना जानबूझकर नहीं हुआ, जानिया और बदचलन औरत को जो सदका दिया वो मैंने जानबूझकर नहीं। नीयत तो मेरी यही थी कि गरीब की मदद करूं, लेकिन तीनों दिन गलत जगह पर मेरा माल पहुंच गया। अच्छा, इस हदीस से एक मसला और निकलता है, अगर गौर करो तो वो नेक बंदा है, तहज्जुद भी पढ़ता था,
फजर भी पढ़ता था, फजर के बाद तिलावत भी करता था, इतना नेक आदमी था, लेकिन दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे सदके को सही जगह पहुंचा दे, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है और गलत जगह पर सदका पहुंच रहा है। इसका एक मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप 5 वक्त के नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, हाजी हो और अल्लाह फौरन आपकी दुआ सुन ले, ये जरूरी नहीं है। तो कहते हैं अपनी नमाजें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं मौलाना, फिर भी अल्लाह सुन नहीं रहा मेरी। ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह आपकी दुआ फौरन सुन ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटा मांगते रहे, 85 साल तक मांगते रहे, 85 ईयर्स, 85 साल तक, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी और 86 साल की उम्र में बेटा दिया इस्माइल। जरूरी नहीं आप जो दुआ मांगे अल्लाह फौरन आपकी सुन ले, उसके यहां देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अब इसने क्या कहा, अल्लाह जितना सदके का माल था वो मैंने दे दिया, अब कुछ नहीं है, अगर मुझे सवाब न मिले तो कम से कम गलत लोगों को जो सदका मैंने दिया है उसका अजाब भी हमें मत देना, हमारे मामले को बराबर बराबर कर दे। अब रात में सो रहा है, आज नहीं निकलता है, माल ही नहीं है सदके का, आज नहीं निकल रहा है, रात में सोता है तो ख्वाब में क्या देखता है, बुखारी शरीफ की हदीस, ये किसी मुल्ला मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस का वाकया। रात में सोता है, ख्वाब देखता है, एक फरिश्ता उसके ख्वाब में आकर कह रहा है, हाय अल्लाह के नेक बंदे मायूस मत हो, ना उम्मीद क्यों होता है, तूने जो अमीर को सदका दे दिया अल्लाह ने उस सदके को भी कबूल कर लिया, तूने दूसरी रात जिस चोर को सदका किया अल्लाह ने उस सदके को भी कबूल कर लिया, गलती से धोखे से तूने जो जानिया और बदचलन औरत को सदका दिया अल्लाह ने उस सदके को भी कबूल कर लिया, तूने अगरचे गलत लोगों की मदद की है लेकिन तेरी नीयत गरीब लोगों की मदद करने की थी, इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे सदके को कबूल फरमा लिया है और तेरे सदके के इस माल से अल्लाह ने उन तीनों को भी हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने सदके का वो माल गरीबों में बांट दिया, उस चोर ने सदके का माल अपनी बीवी बच्चों को खिलाया जरूर है लेकिन उस दिन से तौबा कर ली, उसने चोरी छोड़ दी। उस जानिया और बदचलन औरत को सदके के माल की बरकत से इतना उसके पास पैसा आ गया, इतनी बरकत हुई उसके घर में कि उसने जिनाकारी से तौबा कर ली। अल्लाह ने तेरे सदके के माल में इतनी बरकत रखी है कि जानिया औरत ने जिना से तौबा कर ली, चोर ने चोरी से तौबा कर ली, अमीर आदमी ने तेरे माल को गरीबों में बांट दिया और तकसीम कर दिया और अल्लाह ने तेरे सदके को भी कबूल फरमा लिया। मेरे प्यारे साथियों, बुखारी शरीफ की हदीस हमें यह बतला रही है कि नीयत अच्छी है लेकिन काम वो बेचारा धोखे से गलत तरीके से गलत जगह पर मदद करता चला जा रहा है, लेकिन नीयत अच्छी थी इसलिए अल्लाह ने उसके सदके को कबूल कर लिया, नीयत अच्छी थी। हम कुर्बानी का बकरा लाते हैं, ज़िबा करते हैं, नीयत हमारी कुर्बानी की है लेकिन साथ में यह भी है कि मेरे ताल्लुकात तो मिनिस्टर और नेताओं से बहुत हैं, इनसे बहुत हैं, पता चला कि एक बकरे में 20 किलो गोश्त निकला, 15 किलो गोश्त आपके गैर मुस्लिम दोस्त ही आके खा गए, आपके घर में गरीबों को 2-3 किलो मिला, 2-4 किलो आपके घर में रह गया है। ये हाल है हमारा। गैर मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हो, जायज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 20 किलो गोश्त में से 15 किलो आप गैर मुस्लिमों ही को खिला दें। सिर्फ अपने ताल्लुकात सियासी तौर पर पॉलिटिकल लोगों से मजबूत बनाने के लिए उनके लिए पूरा का पूरा बकरा दस्तरखान पर रख दें और वो आपकी कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद फिर शराब की बोतल पिए और मस्त हो जाएं। मेरे भाइयों, ये नीयत का मौका है, यहां पर नीयत देखी जाएगी कि आप कुर्बानी करते वक्त आपकी नीयत क्या, गरीबों को खिलाने पिलाने की है या अपने पॉलिटिकल ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल लोगों को खिलाने की है, ये आप की नीयत देखी जाएगी। अल्लाह के पास तो गोश्त और खून नहीं पहुंचता, ला यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। जो कुछ भी तुम कुर्बानी करते हो ना, कुर्बानी के जानवर का खून और गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, तुम्हारे दिलों की नीयत देखता है कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है, किस नीयत से, किस जज्बे के साथ तुमने कुर्बानी की है। नीयत अच्छी हो और काम आदमी अगर धोखे से बुरा हो कर जाए तो मेरे भाइयों, नीयत अच्छी हो तो उस पर मुआखजा नहीं होता है,
ایک اور واقعہ سنا دوں, وہ بھی بخاری کے اندر آیا ہے. ایک شخص رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا سامان باندھتا ہے, گھر بیچ دیا, گھر کا پورا سامان ایک اونٹ کے اوپر لاپتا ہے, گلہ بھی ہے, اناج بھی ہے, برتن بھی ہے, بیوی کے کچھ زیور بھی ہیں, سب کچھ اس نے ایک اونٹ پر باندھ دیا اور صبح کے ٹائم پر گھر سے نکلا اور دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتا ہے, دوسری جگہ جانا چاہ رہا ہے. صبح نکلتا ہے اور دن میں تقریباً سورج چڑھنے کے بعد اور زوال سے پہلے, یعنی 10 یا 11 بجے کا ٹائم رہا ہوگا تقریباً, اس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے. بیابان جنگل, سنسان جنگل سے گزر رہا ہے, لیکن صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا تھا, اس لیے تھک گیا تھا. اس نے اپنے اونٹ کو تھوڑا سا سستانے کے لیے, آرام دینے کے لیے ایک درخت سے باندھ دیا, رسی اس کی ایک پیڑ سے, ایک ٹری سے, ایک درخت سے باندھ دی, اور اس کے بعد میں وہ خود اپنے سر کا امامہ اتارتا ہے, اپنے سر کا امامہ اتارتا ہے اور بچھا لیتا ہے, تھوڑا لیٹ جاتا ہے. جب آدمی تھکا ہوا ہو تو نیند اچھی آتی ہے, تھوڑی سی آنکھ بند کی, آنکھ لگ گئی. آدھے گھنٹے بعد, 1 گھنٹے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب. اب دیکھیے منظر, آپ کا پورا گھر کا مال ایک ٹرک پر بھرا ہو اور آپ اپنے ایک گھر سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہو, اور راستے میں کہیں ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آپ نے ٹرک روکا اور بعد میں پتا چلا کہ ٹرک غائب. آپ کے اوپر کیا بیتے گی, آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ 10 لاکھ کے حساب سے سوچتے ہیں. ایک غریب آدمی کی انکم بیچارے کی 10 روپے ڈیلی کی ہے تو اس کے لیے 10 روپیہ ہی 10 لاکھ کے برابر ہے. اس آدمی کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. سوچئے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, اس کو یقین نہیں آ رہا, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی کہ میرے اونٹ پر میرے گھر کا سارا سامان, اور جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اونٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھا, ایک پہاڑی نظر آئی, بھاگتا ہوا گیا, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا. پہاڑی پر چڑھ کر جھانک کر دیکھتا ہے نیچے کی طرف, لیکن اس کو اونٹ نظر نہیں آتا. اترتا ہے, دوسری پہاڑی نظر آتی ہے, اس کے اوپر چڑھتا ہے, جھانک کر دیکھتا ہے, اونٹ نظر نہیں آتا. اس کو کچھ کھائیاں, کچھ گفائیں نظر آتی ہیں, ان میں جھانک کر دیکھتا ہے, اس کو اونٹ نظر نہیں آتا. کبھی اس جھاڑ میں, کبھی اس جھاڑ میں جھانک جھانک کر دیکھتا ہے, لیکن اس کو کہیں اونٹ نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا, یعنی عصر کا وقت نکل چکا ہے. تھک گیا, 11 بجے سے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے 4 بجے تک, 5 بجے تک تھک کر چور ہو گیا, لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا. وہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے اونٹ کو باندھا تھا. پیڑ کی طرف دیکھتا ہے, پھر ایک نظر امید بھری ڈالتا ہے کہ کہیں اونٹ نظر آ جائے, لیکن اب اس کی امیدیں ختم ہو گئیں. وہ سمجھ گیا کہ میرا اونٹ کوئی لے کر بھاگ گیا ہے, نراش ہو گیا ہے. تقریباً کوئی 5 بجے کے ٹائم پر, ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے, اسی پیڑ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے سر کا اسی امامہ کو اتارتا ہے, اپنے پسینے کو پوچھتا ہے, سوچتا ہے کہ چلو رات یہیں گزاریں گے, خطرناک جانور ملیں گے, رات میں سفر کرنا اچھا نہیں ہے, اب تو اونٹ بھی ہمارے پاس نہیں, اب سفر کیسے کریں گے, چلیے آج کی رات یہیں گزار لیتے ہیں, کل پھر دیکھا جائے گا. اس نے امامہ پھر بچھایا, تھک گیا تھا, لیٹ گیا, آنکھ بند ہو گئی, لیکن ٹینشن اتنا تھا اونٹ پر لدا ہوا سامان کا, اپنے ساز و سامان کا ٹینشن اتنا تھا کہ وہ نیند سے زیادہ دیر تک نہیں آئی, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ پھر کھل گئی. اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پھر اسی پیڑ کی طرف دیکھا جہاں اونٹ باندھا تھا. جب اس کی آنکھ 5:30-6 بجے کے آس پاس کھلتی ہے تو اس نے اس پیڑ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ تو اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے, رسی وہی ہے, بندھا بھی ویسا ہی ہے, اتنی گانٹھیں لگی ہوئی ہیں جتنی گانٹھ میں نے لگائی. تجسس ہوا کہ اونٹ پورا دن میں نے تلاش کیا لیکن
ऊंट नहीं मिला और अचानक आ गया, सामान तो कम नहीं हुआ, वो अपना सामान तलाश करने लगा। हदीस के अल्फाज हैं, जितना सामान उसने लादा था हूबहू सेम टू सेम उतना सामान वो पाता है। अनाज का एक दाना भी कम नहीं होता है। मैं कह सकता हूं उस जमाने में गेहूं नहीं चलता था, चावल नहीं। मैं कह सकता हूं चावल और गेहूं के दाने के बराबर भी उसके ऊंट पर जो सामान लदा था उसमें कोई कमी नहीं। अब तो मारे खुशी के वो जमीन पर नहीं खड़ा है, खुश इतना हुआ है कि उसका ठिकाना खुशी का नहीं रहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, पूरा दिन मैंने तलाश किया, ऊंट नहीं मिला और अचानक अपने आप अपनी मर्जी से आ गया और वैसे ही बंधा हुआ है रस्सी से जैसे मैंने बांधा। वाकई अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, मारे खुशी के उसकी जबान से ये उल्टे जुमले निकल गए। मारे खुशी के उसने अल्लाह की तारीफ में जो जुमले बोले वो मारे खुशी के उल्टे जुमले बोल गया। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। वाकई अल्लाह मान गया तेरी कुदरत, मैंने ऊंट तलाश किया, ऊंट नहीं मिला, वाह तेरी कुदरत, अपनी मर्जी से ऊंट यहां आ गया, ये तेरी कुदरत की कारीगरी है। अय अल्लाह वाकई तू ये कुदरत को मान गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। वाह वाह अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत को, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, तू मेरा बंदा, वो अना रब्बुक और मैं तेरा रब। आपको अंदाजा नहीं है ये कितने खतरनाक वर्ड हैं। आप इन जुमलों के खतरनाकी को अगर समझ जाएं तो कहना ही क्या। इतने खतरनाक ये जुमले हैं, ये जुमले फिरौन ने भी अदा नहीं किए थे। इस आदमी की जबान से कितने बुरे जुमले निकले, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। जरा सोचो, अल्लाह ने फिरौन को भी तबाह बर्बाद कर दिया, गर्क कर दिया, दरियाए नील में डुबो दिया और पानी में गर्क करके उसको मार डाला। हालांकि उसने भी इतने खतरनाक जुमले नहीं कहे थे, वो तो सिर्फ लोगों से कहता था अना रब्बुकुम उलाला, मुझे अपना रब मानो। वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। उसने यानी फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। सुन रहे हैं आप, कभी जिंदगी में फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। वो लोगों से कहता था कि मुझे अपना रब मानो, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन जब रात में दुआ करता था तो अल्लाह से ये कहता था अल्लाह मैं लोगों की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूं, लोगों का मैं रब बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा रब तू ही है। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में वो अपने रब से ही दुआ मांगता था। उसने कभी अल्लाह से ये नहीं कहा कि तू मेरा रब, इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि मैं तेरा, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। गौर करो कि जुमले कितने खतरनाक हैं, गौर करो जुमले कितने डेंजर हैं, फिरौन से भी खतरनाक जुमले। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को इसलिए गर्क कर दिया क्योंकि वो ये कहता था ना रब्बुकुम उलाला, मैं तुम्हारा रब हूं। वो जानबूझकर कहता था, वो दिल से कहलवाता था कहो मुझे अपना रब। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। और गर्क ही नहीं किया, अपने आप को रब कहने वाले देख ले, और आए दुनिया वालों देख लो अपने आप को खुदा कहने वाले का अंजाम क्या है। आज भी उसकी लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन उसकी लाश को एक्सेप्ट नहीं करती। जमीन में अगर आज भी फिरौन को दफनाया जाता है तो जमीन निकाल के बाहर फेंक देती है। जमीन समंदर में अगर फिरौन की लाश को डाला जाता है तो समंदर भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक देता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है हम फिरौन के बदन, फिरौन के शरीर, फिरौन के जिस्म, फिरौन की लाश की हिफाजत करेंगे कयामत तक, ताकि वो लोगों के लिए निशाने पर बन जाए। लोग अपने देख लें कि अपने आप को रब कहने वाले का अंजाम क्या है। आज वो अपने आप को जिंदा नहीं कर सकता है। आज जमीन उसकी बॉडी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, फिरौन समंदर उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। गौर करो, जो लोगों को का रब बनता था आज अपने आप को बचा नहीं पाता। अल्लाह ने उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। लेकिन इस आदमी ने कहा तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, जब इसकी जबान से जुमला निकला, अल्लाह वाह
वाकई मान गया तेरी कुदरत, अंत अब्दी वाना रब्बुक, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह के नबी क्या कहते, जब अल्लाह ने उसकी जबान से जुमला सुना, फज़ाहिक अल्लाह, अल्लाह हंस दिया। इन जुमलों पे हंसना चाहिए, इन जुमलों पर अल्लाह को हंसना चाहिए, लेकिन अल्लाह हंस दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि मेरे बंदे की नीयत ये नहीं थी। देख रहे हैं नीयत का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। नीयत देखिए आप, उसके दिल में ये नीयत नहीं थी, वो कहना यही चाह रहा था, वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के अपने ऊंट को देखा और सारा सामान जब देखा तो खुशी में उसको होश नहीं रहा कि मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, निकल क्या रहा है। तो वो खुशी में कह गया। ये जुमले उसके मुंह से जानबूझकर नहीं निकले थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने उससे कोई मुआखजा नहीं किया, खुश हुआ, बल्कि वो खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत ये नहीं थी। कितने खराब जुमले बोले, लेकिन नीयत अच्छी थी, नीयत अच्छी। अब आप अंदाजा लगाइए, नीयत की वजह से इतना बड़ा जुमला कहने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कुछ नहीं कह रहा है। अब हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, हमारी नीयतें क्या होती हैं। आज जलसा सुनने आए हो, हमारी नीयत क्या है? जुमे में आपकी मस्जिद में कितने लोग थे? फिर असर में क्यों नहीं रहे उतने लोग? मगरिब में क्यों नहीं रहे उतने लोग? पूरे हफ्ते क्यों नहीं आते उतने लोग? जुमे के दिन सबसे पहले आप अगली सफ में आके कैसे बैठ जाते हैं, वो भी सऊदी अरब का रुमाल डालवाल कर, कैसे आ जाते हैं? नीयत है, यहां पर नीयत देखी जाएगी। मैंने दो वाकयात आपके ऐसे सुना दिए कि अच्छी नीयत थी लेकिन काम गलत था, अल्लाह ने माफ कर दिया। एक तो वो वाकया, उसने चोर की मदद कर दी, अमीर की मदद कर दी, जानिया की मदद कर दी, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी, वो गरीबी की मदद करना चाहता था, अल्लाह ने उसके सदके को कबूल कर लिया। एक ये कि इसके दिल में नीयत नहीं थी अल्लाह को अपना बंदा कहने की, लेकिन धोखे से कह गया, अनजाने में कह गया, मारे खुशी के कह गया, अल्लाह ने इससे भी कोई मुआखजा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इसकी कहने की नीयत ये नहीं थी, माफ कर दिया। आइए आपको एक ऐसा वाकया भी सुना दूं, काम बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा काम था, लेकिन अल्लाह ने उस आदमी को जन्नत नहीं दी बल्कि जहन्नम में दाखिल कर दिया। क्या काम? क्या काम? बुखारी शरीफ की हदीस है, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएगा, सारी कायनात के सामने, सारी दुनिया वालों के सामने, उस आदमी को बुलाकर कहेगा इधर आओ। वो आदमी आएगा, और सुनिए, वो आदमी जब सामने आएगा तो अल्लाह उससे पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे सेहत दी थी, मैंने तुझे तंदुरुस्ती दी थी, बता तूने अपनी जवानी को, अपनी तंदुरुस्ती को कहां गंवाया? दौलत दी थी, पैसा दिया था, सब कुछ दिया था, जमीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी तेरे पास, बता तूने कहां खर्च किया? वो शख्स कहेगा अल्लाह तू सवाल कर रहा है, तू तो सब जानता है मेरे बारे में। अल्लाह कहेगा दुनिया वालों के सामने मैं पूछ रहा हूं, बताओ इनको। कहेगा अल्लाह क्या तू नहीं जानता कि तेरी राह में मैंने जिहाद किया था और शहीद कर दिया गया? अल्लाह मेरी खूबसूरत बीवी थी, अल्लाह मेरे कई बच्चे थे, अल्लाह मैं जमींदार था, अल्लाह मेरे कई प्रॉपर्टीज थी, मेरी कई प्रॉपर्टीज थी, मेरे कई बिल्डिंगें थी, मेरे कई बागात थे, खेत थे, कई कई बीघा जमीन थी हमारे पास, सब कुछ था मेरे पास। अचानक जिहाद का ऐलान कर दिया जाता है और मैंने घोड़ा उठाया, तलवार ली और मैदान जिहाद में मैं निकल गया। और अल्लाह बाकी तो अच्छी तरह जानता है, सफों को चीरते हुए मैं मैदान जंग में पहुंच गया, काफिरों से लड़ने लगा, इतना लड़ा कि मेरी तलवार से कई काफिर कत्ल कर दिए गए, कई काफिर मारे गए, और फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर चल गई, मैं कत्ल कर दिया गया, मैं मारा गया। अरे अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है, तूने जो जिंदगी दी थी, मैंने तेरी दी हुई जिंदगी को तेरी राह में कुर्बान कर दिया, मैं शहीद कर दिया गया, मेरी गर्दन उड़ा दी गई,
میں نے بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی, پراپرٹی چھوڑی, یہاں تک کہ اپنی جان تک کا نذرانہ میں نے تیری راہ میں دے دیا. اللہ کی آواز آئے گی, پکار کر اللہ اس کو بولے گا کذبتا, میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, کیا میں نے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا؟ اللہ کہے گا یہ سچ ہے, تو نے اپنی بیوی کو چھوڑا, یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنے بچوں کو چھوڑا, یہ بھی سچ ہے کہ تو نے اپنی زمین و جائیداد, گھر مکان چھوڑا, پراپرٹی چھوڑی, دولت چھوڑی, گارڈن چھوڑے, باغات چھوڑے, کئی بیگھہ زمین چھوڑی, جہاد کا اعلان سنا تو میدان جہاد میں نکل گیا, یہ بھی سچ. تو نے صفوں کو چیرا اور چیر کر تو میدان جنگ میں پہنچا, یہ بھی ٹھیک. تو نے تلوار چلائی, یہ بھی ٹھیک. کئی کافروں کو مارا, یہ بھی ٹھیک. تیری گردن پر بھی تلوار چلی, یہ بھی ٹھیک. یہاں تک تو سچ ہے, لیکن تو نے یہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں مارا گیا, تیری راہ میں میں نے اپنی جان دے دی, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تیری گردن میری راہ میں نہیں کٹی, کیونکہ جب تو نے گھوڑا دوڑایا, تلوار ہاتھ میں لی, میدان جنگ میں گیا, اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی آج اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ مجھے بہت بڑا سورما کہیں. اس وقت تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو اور لڑنے والا کہیں, میرے ہنر کی داد دیں, میرے کیریئر کی داد دیں, میرے ہنر کی, میرے آرٹ کی, میرے کلا کی داد دیں. اور تو اسی ارادے کو لے کر میدان جنگ میں گیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں تو بہادر بن جائے اور بہادر کہلایا جائے. جب تو لڑ رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی, اور اسی وقت ایک کافر کی تلوار تیری گردن پر چل گئی اور تو قتل کر دیا گیا. تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا, مل گئی. تیرے دل میں جو نیت تھی وہ تجھے مل گئی. تو دنیا میں جو عزت چاہتا تھا وہ تجھے مل گئی. لوگوں کی نظروں میں جو سورما بننا چاہتا تھا وہ کہلائے. اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اب غور کریے آپ, لڑا, بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, پراپرٹی چھوڑی, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی, باغات چھوڑے, سب کچھ چھوڑا, یہاں تک کہ اپنی جان بھی دی, لیکن ملا کیا؟ جہنم. کیوں؟ صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. اس نیت کی وجہ سے یہ اچھے کام پہ پانی پھر گیا. اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے. اس کی نیت بری تھی, اس لیے سب کچھ بیکار, اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی گیا تو کہاں گیا؟ کئی کافروں کو مارا, لیکن اس کے باوجود بھی گیا تو کہاں گیا؟ جہنم کے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں نیت کا کتنا بڑا دخل ہے. نیت اچھی ہے, اگر دھوکے سے انجانے میں غلط کام بھی ہو جائیں, نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اگر اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کام ہے, عبادت ہے, لیکن نیت خراب ہے, تو اللہ رب العالمین آپ کو برے اس نیت کی وجہ سے اس اچھے کام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, عبادت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی. شادیوں کے وقت, شادی ایک سنت ہے, آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, اور سنت عبادت ہوتی ہے, یعنی نکاح بھی ایک عبادت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شادی کے وقت آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جہاں کر رہے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ دیندار لڑکے سے اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ میری بیٹی اس کے ہاں اپنے دین کو بچا کے رکھے تو ٹھیک. اگر کسی پراپرٹی اور زمین و جائیداد والے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں, اس کی دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. نکاح بھی ایک عبادت ہے, لیکن آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا کیونکہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے. ہر چیز عبادت ہے تو اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں, ایک تابعی گزرے ہیں حضرت سالم نام سے, ایک تابعی گزرے ہیں سالم. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے. ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا 27 سال پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, آج مجھے وہ گناہ یاد آ گیا, پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں, جبکہ میں 27 سال سے اس کی توبہ کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کیا گناہ تھا؟ گناہ سنیے, آپ تعجب کریں گے.
27 साल पहले क्या गुनाह का? एक गुनाह मैंने कर दिया था। का क्या गुनाह का? 27 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। बस इतना सा। सोचिए उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी। 27 साल के बाद जब इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे हो, कह रहे हैं कि 27 साल पहले मुझसे गुनाह हो गया था। और गुनाह क्या था? कि मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी फरमाते बिदाती को अपने घर में पनाह मत दो, बिदाती के घर मत जाओ, बिदाती के ऊपर लानत हो, बिदाती से सलाम मत करो। अल्लाह के नबी तो ये फरमा रहे हैं बिदाती को अपने घर पे ठहराने वाला, अपने घर में पनाह देने वाला भी मलऊन है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। मैंने बिदअती को सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने मुझे बख्शा होगा या नहीं बख्शा होगा। हम और आप जरा गौर करें, हम और आप तो अपनी बहनों बेटियों की शादी बिदअतियों में कर रहे हैं। वो तो सलाम करने के बाद भी 27 साल के बाद रो रहे हैं, अल्लाह ने मेरा गुनाह भी माफ किया होगा या नहीं। 27 साल तौबा करने के बाद भी यकीन नहीं कि अल्लाह ने माफ किया होगा या नहीं। सुनो, जो अपने बहनों और अपनी बेटियों को बिदअतियों में बिहा रहे हैं और शादियां कर रहे हैं, वो अपने अंजाम के बारे में सोचें। प्रॉपर्टी वाला लड़का तो मिल गया, बैंक वाला लड़का तो मिल गया, डीलर तो मिल गया, बहुत अच्छा आदमी तो मिल गया, पैसे वाला तो मिल गया, लेकिन तुमने जीते जी अपनी बेटी को जहन्नम में झोंक दिया। एक बिदअती के यहां अपनी बेटी और बहन का निकाह करके तुमने अपनी बेटी का जो दीन गर्क कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका अजाब किसके ऊपर आएगा? सच बात कहने में मैं चूकता नहीं हूं, इस बात की परवाह नहीं रहती है कि कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा। अपनी नीयतें अच्छी करिए, अपनी नीयतें अच्छी करिए। मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और आपका मामला भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा, कभी इन्वर्टर खराब, कभी ये कभी वो। तो मेरे भाइयों, रोते पीटते मैंने 1 घंटे का वक्त आपको दे दिया है। जुमे का मैं ऐलान था, आपको पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए था सबको सेटअप, लेकिन हमें मालूम है। एक बात और कह दूं आपको, ये फितरी चीज है। कानून, 2 कानून होते हैं, एक कानून शरीयत और एक कानून फितरत। शरीयत में रहम है लेकिन कानून फितरत में रहम नहीं है। ये सिस्टम है, इस दुनिया में उसी को जिंदा रहने का हक है जो चाको चौबंद है। सुस्ती को ये दुनिया पसंद नहीं करती। वो पौधे मर जाते हैं जो सुस्ती से बढ़ते हैं, वो दरख्त सूख जाते हैं जो सुस्ती से परवान चढ़ते हैं। वही जानवर इस दुनिया में आबाद रहेंगे जो मुफीद आमद है और जो फायदेमंद हैं, और जिन जानवरों से कोई फायदा नहीं वो डायनासोर की तरह उनका नामो निशान मिट जाता है। इस दुनिया में नाकारा लोगों को के सरों पर ताज नहीं पहनाया जाता है, याद रखिएगा। कपकपाते हुए पैर वाले तख्त ताज के मालिक नहीं बनते हैं। यह दुनिया का निजाम चीख चीख के कह रहा है, यह दुनिया किसी को माफ नहीं करती है, यह इंतकाम की दुनिया है। यहां सुस्त के साथ और काहिली के साथ अमल करने वालों की सजा मौत है। यह दुनिया माफ नहीं करेगी। आपने बाप को गाली दी, कानून शरीयत यह है कि अगर बाप ने माफ कर दिया तो अल्लाह भी आपको माफ कर देगा। शरीयत में रहम है। आपने मां को गाली दी, बाप को गाली दी और बाप से माफी मांगी तो बाप माफ कर देगा, चलो बेटा है मेरा, माफ कर दिया। शरीयत भी रहम कर देगी, लेकिन फितरत नहीं रहम करती है। फितरत चीख चीख के कहती है कि आपने अगर अपने बाप को गाली दी है तो तैयार रहो, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हें गाली देगी। अगर आज तुमने अपनी मां को घर से निकाला है तो इंशाअल्लाह कल तुम्हारा बड़ा बेटा भी तुम्हें अपने घर से निकालेगा। यह फितरी कानून है जो कभी माफ नहीं होता है। शरीयत में रहम है लेकिन कानून फितरत में रहम नहीं है। अगर आज आपने किसी की मां बहन बेटी के साथ गलत काम किया है तो फितरत का तकाजा यह है कि आपकी मां बहन बेटी के साथ भी गलत काम होगा। फितरत माफ नहीं करती है। आपने किसी की बहन के साथ जिना किया है तो हमारी बहन के साथ जिना होना है। आपने किसी की बेटी के साथ मुंह काला किया है तो हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ भी मुंह काला होगा। यह फितरी निजाम है और फितरत माफ नहीं करती है। शरीयत में रहम है, फितरत में रहम नहीं है। आपने किसी को धोखा देकर अगर चंद रुपए कमाए हैं तो यह दुनिया का कायदा है कि वो रुपया तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट में कैंसर पैदा करके वो रुपया बर्बाद करवा देगा। तुम्हारे बेटे को कैंसर का मरीज करके वो रुपया बर्बाद करवा देगा। यह कानून फितरत है जो कभी माफ नहीं होती है। अगर आपने हराम कमाई है तो वो तुम्हारे पास रुकेगी नहीं है। अगर नाजायज पैसा तुमने कहीं किसी से कमाया है तो वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने दूसरे को धोखा दिया। तुम आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। यह कानून फितरत है। हम आपको माफ कर सकते हैं, शरीयत आपको माफ कर सकती है, लेकिन फितरत आपको माफ नहीं कर सकती है।
लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर है। आपने शराब पी ली, अल्लाह मैंने शराब पी ली माफ कर दे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन लॉ ऑफ नेचर यह है कि शराब पीने वाले के गुर्दे खराब होंगे। इस फितरी निजाम से, इस फितरी सजा से तुम नहीं बचोगे। बीड़ी सिगरेट पियोगे तो फेफड़े खराब होंगे। अल्लाह माफ कर सकता है तौबा करने के बाद, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरी निजाम आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। शराब पियो और सेहतमंद भी रहो, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू खाओ और तंदुरुस्त भी रहो, ऐसा हो नहीं सकता। तो फितरी नेचर, लॉ ऑफ नेचर को कभी माफ नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये दुनिया में जीने का हक उसी को है जो कारबंद है, जो मेहनत करते हैं। मार्केटें उनके हाथों में नहीं आती हैं जो सुबह 11 बजे दुकान खोलने के बाद भी कुर्सी पर ऊँघते रहते हैं। याद रखो, इस दुनिया में वही जीने का हक रखता है जो लगातार मेहनत करे, जो रातों दिन अपने एम पर, अपने निशाने पर रहे। ये दुनिया चीख चीख कर कहती है कि तरक्की उसी को मिलती है। आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो दौलत, पैसा, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। हजरत उमर खलीफा बनने के बाद भी रात की तारीकी में सोते नहीं थे, गल्ले और अनाज की बोरी अपने कांधे पर लाद कर फकीरों, गरीब और बेवा और मिस्कीनों के घर में पहुंचाते थे। ये निजाम फितरत और लॉ ऑफ नेचर चीख चीख के कह रहा है कि दुनिया आराम करने की जगह नहीं है, ये मुसलसल अमल करने की है, मुसलसल मेहनत करने की दुनिया है। और यहां वही जिंदा रहने का हक रखता है जो मेहनत करता है। जिंदा कहलाने का हक उसी को है जो मेहनत करता है, जिंदा रहने का हक उसको नहीं है जो आदमी कुर्सी पर बैठ के ऊंघे। बहुत कुछ कह दिया। मस्जिद का निजाम आगे भी सही रखोगे, जलसों का निजाम सही रखोगे, बैतुल माल का निजाम सही रखोगे, समाज का निजाम सही रखोगे, मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों यही चंद बातें हमने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि बार-ए-ला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नियतों की इस्लाह फरमाए, हमारी इबादतों में खुलूस पैदा फरमा दे, हमारी इबादतों में अच्छी नियत हमें करने की तौफीक अता फरमा और हर अच्छा काम अच्छी नीयत के साथ करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।